Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back with another important lecture, and which is the part of acute leukemia. And today we are going to discuss the second most important type of acute leukemia, and that is acute lymphoblastic leukemia. Acute lymphoblastic leukemia, as the name indicates that this is acute, this means that according to FAB classification, the number of blasts will be less than 30%, while according to WHO classification, the number of blasts will be more than 20%, while FAB classification, the number of blasts will be more than 30%. And which type of blast will be present in the bone marrow? As the name indicates, that this is acute lymphoid leukemia or lymphoblastic leukemia. So the type of blast will be lymphoblast. Now this is a difference between a myeloblast and a lymphoblast. We will differentiate these two blasts on the basis of size, cytoplasm of the cell, or rod, either if it is present or absent, and nuclear chromatin pattern and nucleoli. So this is a myeloblast and this is a lymphoblast. But how we will differentiate between these two cells? So the size, as you can see, that the size of this myeloblast is larger as compared to this lymphoblast. So one difference is that a myeloblast will have a larger size, while a lymphoblast will have a smaller size as compared to myeloblast. Now the second most important thing that we can see, that the cytoplasm of our myeloblast will have moderate cytoplasm, means that the NC ratio, although NC ratio will be high, but still a myeloblast will have more cytoplasm as compared to a lymphoblast. So NC ratio of both these blasts will be high, but we can say that as compared to myeloblast, the lymphoblast will have NC ratio higher as compared to myeloblast. Now our rod, as we discussed in previous lectures, that our rod is basically this spindle-like structure, and this is the linear aggregation of primary granules. And we know that myeloblast is basically a precursor cells of granulocytes. So in granulocytes, there are granules present in granulocytes. So this oocyte is basically the linear aggregation of primary granules, that these granules basically combine with each other in a linear pattern, and they form a spindle-like structure, and this spindle-like structure is known as oocyte. So oocyte will be present in a myeloblast, while in lymphoblast oocyte will be absent. Now the second most important thing, fourth important thing is nuclear chromatin pattern. We can see in this picture that the chromosomes are apart from each other in a myeloblast, while in lymphoblast the chromatin will be very clumped with each other. So this look like dense color, dark purple color, while this look like a slight dark purple. So this means that the nuclear chromatin pattern is fine in a myeloblast, while the nuclear chromatin pattern is coarse or dense in a lymphoblast. So this is a fourth differentiation point between a lymphoblast and a myeloblast. Now nucleoli, this is basically nucleoli. Nucleoli is mostly prominent in a myeloblast as compared to a lymphoblast. Although nucleoli is also present in a lymphoblast, but in myeloblast these nuclei are more prominent as compared to a lymphoblast. But we can also see that this is also a nucleoli which is present in a lymphoblast, but in myeloblast this is more prominent as compared to a lymphoblast. So this is basically differentiate between a myeloblast and a lymphoblast.
So in acute lymphoblastic leukemia or in acute lymphoid leukemia, most of the cells in acute lymphoblastic leukemia is lymphoblast, and there will be no myeloblast present in the bone marrow in acute lymphoblastic leukemia. As we discussed that leukemia is the most common childhood cancer, and acute lymphoblastic leukemia is the most common subtype, accounting for 75 to 80% of all cases. So acute lymphoblastic leukemia is basically a leukemia of children. We can also say that this is a childhood leukemia. Acute lymphoblastic leukemia, which account for 75 to 80% of the cases, while acute myeloid leukemia is an adulthood leukemia, which account for 75 to 80% in adults, while acute lymphoblastic leukemia is basically a childhood leukemia. So we can say that acute lymphoblastic leukemia mostly बच्चों में अकर होता है, जबकि acute myeloid leukemia या acute lymphoblastic leukemia ये adults में पाया जाता है. FAB classification of acute lymphoblastic leukemia or ALL. So FAB classification के मुताबिक acute lymphoblastic leukemia को हम तीन टाइप्स में डिवाइड करते हैं, जैसे L1, L2 और L3, या ALL L1, ALL L2 and ALL L3. So these are the three most common type of acute lymphoblastic leukemia according to FAB classification. So FAB classification के मुताबिक कि जितने भी सब टाइप्स ऑफ ल्यूकीमिया हैं उनमें ब्लास्ट मोर देन 30% होंगे और ब्लास्ट लिम्फोब्लास्ट होंगे बोन मैरो में. अब इन तीनों में डिफरेंशिएशन क्या है कि L1 में मोस्टली मैच्योर लिम्फोब्लास्ट होंगे और एक ही टाइप के लिम्फोब्लास्ट होंगे जो कि स्मॉल लिम्फोब्लास्ट होते हैं, या तो ये टी सेल्स होंगे या बी सेल्स होंगे, लेकिन ब्लास्ट मोस्टली स्मॉलर होंगे और इनसी रेशो इनकी हाई होगी. जबकि L2 में इसमें दो किस्म के ब्लास्ट होते हैं, एक स्मॉल ब्लास्ट एक और दूसरा लार्ज किस्म के ब्लास्ट. सो हम कह सकते हैं कि एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया में हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन ऑफ ब्लास्ट होती है, मींस कि एक पॉपुलेशन स्मॉल ब्लास्ट है जबकि दूसरा पॉपुलेशन लार्ज ब्लास्ट है. जबकि L1 में एक ही पॉपुलेशन के ब्लास्ट होते हैं जिसको हम कहते हैं हेमोजीनियस पॉपुलेशन ऑफ ब्लास्ट. इसमें एक और चीज जो कि इंपॉर्टेंस रखती है और वो रखती है प्लूमॉर्फिक. प्लूमॉर्फिक मींस कि इसमें शेप्स में वेरिएशंस होंगी. कुछ शेप रेगुलर किस्म के ब्लास्ट होंगे लिम्फोब्लास्ट और कुछ राउंड किस्म के लिम्फोब्लास्ट होंगे, तो हम इसको कहते हैं प्लूमॉर्फिक टाइप ऑफ ब्लास्ट. जबकि L3 में जो लिम्फोब्लास्ट होंगे वो बर्किट लिम्फोमा टाइप ब्लास्ट होते हैं. बर्किट लिम्फोमा में जो ब्लास्ट होते हैं उनके साइटोप्लाज्म में विक्यूल्स होते हैं, और ये जो L3 के जो ब्लास्ट हैं ये मोस्टली लार्ज ब्लास्ट होते हैं. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसके लिए मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं. और ये यूनिफॉर्म होते हैं, मींस कि होमोजीनियस पॉपुलेशन ऑफ ब्लास्ट होती है. इसमें एक और प्रॉपर्टी जो कि इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसके जो साइटोप्लाज्म है उसका कलर डीप बेसोफिलिक कलर होता है, और साइटोप्लाज्म में विक्यूलेशंस होती हैं, विक्यूल्स होते हैं. विक्यूल्स बेसिकली क्योंकि ये मैच्योर टाइप के बी सेल्स होते हैं और बी सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस प्लाज्मा सेल्स, एंड द प्रॉपर्टी ऑफ प्लाज्मा सेल इज टू प्रोड्यूस अमीनोग्लोबुलिन्स. सो विक्यूलेशन बेसिकली जब इम्यूनोग्लोबुलिन्स इन ब्लास्ट से निकल आते हैं तो जो खाली स्पेस रह जाते हैं वो विक्यूल्स के फॉर्म में रह जाते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं विक्यूलेशंस प्रेजेंट इन द लिम्फोब्लास्ट. जबकि इनसी रेशियो इन सेल्स की एज कंपेयर टू दीज टू सेल्स लो होती हैं. लो मींस इनसी रेशियो मींस कि साइटोप्लाज्म कम, साइटोप्लाज्म ज्यादा जबकि न्यूक्लियस कम होता है, इसलिए इनसी रेशियो यानी न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशियो इन सेल्स के कम होते हैं.
This is another differentiation feature of L1, L2 and L3. और इनके सेल्स में यानी लिम्फोब्लास्ट में हम किन किन चीजों के बेस पे डिफरेंशिएशन करते हैं. नंबर 1, साइज ऑफ द सेल. अगेन आई एम गोइंग टू हाईलाइट इट. न्यूक्लियस, amount of cytoplasm, nucleoli, genetic materials, cytoplasm vacuolation and basophilia. So these are the important properties on the basis of which we can differentiate between L1, L2 and L3. So we will discuss it one by one. So size of the cell. L1 में जो लिम्फोब्लास्ट होते हैं उनका साइज स्मॉल होता है और यूनिफॉर्म होते हैं. मींस यूनिफॉर्म मींस एक ही किस्म के होते हैं. जबकि L2 के अगर हम देखें तो L2 में ब्लास्ट लार्ज होंगे और उसमें हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन ऑफ ब्लास्ट होंगी. मींस कि कुछ ब्लास्ट स्मॉल साइज के होंगे और कुछ ब्लास्ट लार्ज साइज के होंगे, तो हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन ऑफ ब्लास्ट. जबकि L3 में मोस्टली लार्ज टाइप ऑफ ब्लास्ट होते हैं और होमोजीनियस होते हैं. मींस कि एक ही साइज के ब्लास्ट होते हैं लेकिन लार्ज. सो ऑन द बेसिस ऑफ साइज हमने ये कहा कि L1 में स्मॉल साइज, L2 में स्मॉल प्लस लार्ज साइज और L3 में लार्ज साइज. फर्क किस चीज का है? होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस का. फिर न्यूक्लियस. L1 में न्यूक्लियस राउंड और रेगुलर होता है, जबकि L2 के जो लिम्फोब्लास्ट होते हैं उनका जो न्यूक्लियस है वो ओवल टू राउंड होता है. और बाज़ औक़ात इसके जो न्यूक्लियस है उसमें न्यूक्लियर क्लिफ्टिंग मौजूद होती है. आई विल later on show it that what is nuclear clifting. जबकि L3 के जो ब्लास्ट उनका न्यूक्लियस राउंड होता है. Now amount of cytoplasm, that the amount of cytoplasm in one type of blast will be scanty, means a very small amount of cytoplasm will be present in one type of blast, while in L2 type of blast the amount of cytoplasm will be moderate, means it will be larger as compared to L1 type of blast, while in3 the amount of cytoplasm will be moderate because the cell size is larger or NC ratio is low as compared to these two type of leukemias. Now genetic materials. Genetic materials means कि आया न्यूक्लियस ज़्यादा डेंस है या डेंस नहीं है. मीन्स कि क्रोमेटिन जो पैटर्न है वो डेंस है. क्रोमेटिन पैटर्न मीन्स कि जो क्रोमोसोम्स है आया वो एक दूसरे के साथ बहुत जुड़े हुए हैं और इट इज अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. सो इन L1 the chromosome will be very dense, means chromosome will be very condensed to each other and very attached to each other, while L2 it will be variables. Variable means क्योंकि इसमें दो किस्म के ब्लास्ट पाए जाते हैं, स्मॉल और लार्ज. तो जो स्मॉल ब्लास्ट है उसमें डेंस होगा क्रोमेटिन पैटर्न, जबकि लार्ज जो होंगे उसमें ओपन होंगे. इसी तरह क्योंकि L1 लार्ज सेल्स है और इसमें न्यूक्लियस कम है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि इसमें भी यूनिफॉर्मिटी होगी और जो न्यूक्लियर क्रोमेटिन पैटर्न है वो ओपन होगा जस्ट लाइक L2. न्यूक्लियोलाई. स्मॉल ब्लास्ट में न्यूक्लियोलाई मोस्टली नजर नहीं आते हैं, जबकि L2 के जो ब्लास्ट है उसमें 1 to 2 न्यूक्लियोलस वो नजर आते हैं, जबकि L3 में ये मौजूद होते हैं और प्रोमिनेंट भी होते हैं. साइटोप्लाज्म वैक्यूलेशन L1 में ओकेजनल और नहीं पाए जाते हैं मोस्टली. इसी तरह L2 में भी वेरिएबल्स होते हैं, कुछ में होंगे कुछ में नहीं होंगे, लेकिन मोस्टली जो कि प्रैक्टिकल हमने देखा है तो प्रैक्टिकल इसमें L2 में मोस्टली साइटोप्लाज्म वैक्यूलेशन नजर नहीं आते, जबकि L3 के टाइप ब्लास्ट में साइटोप्लाज्म वैक्यूलेशन बड़े प्रोमिनेंट होती हैं. इसी तरह बेसोफिलिया, साइटोप्लाज्म बेसोफिलिया की हम बात करते हैं तो साइटोप्लाज्म इसका लाइट ब्लू कलर का होता है
ये भी लाइट ब्लू कलर का होता है, जबकि L3 में जो बेसोफिलिया होता है बड़ा प्रोमिनेंट होता है। और ये डिफरेंशिएशन पॉइंट है L3 में, L2 में और L1 में कि बेसोफिलिया मोस्टली L3 टाइप ऑफ ल्यूकीमिया में नजर आता है। नाउ WHO क्लासिफिकेशन ऑफ एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, तो WHO ने इसको दो में डिवाइड किया है, प्रिकर्सर बी सेल्स और प्रिकर्सर टी सेल लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया / लिम्फोमा। यहाँ पर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक ल्यूकीमिया और दूसरा लिम्फोमा। सो ल्यूकीमिया और लिम्फोमा, इसमें फर्क क्या है? ल्यूकीमिया जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि ल्यूकीमिया क्या है कि बोन मेरो में ब्लास्ट मौजूद हैं और ये ब्लास्ट पेरिफेरल सर्कुलेशन में भी आ जाते हैं, इसको हम कहते हैं ल्यूकीमिया। लिम्फोमा इसके अपोजिट है कि बोन मेरो में या लिम्फ नोड्स में ब्लास्ट मौजूद होंगे और वो एक डिस्क्रीट मास बना देते हैं, लेकिन वो पेरिफेरल सर्कुलेशन में नहीं आते। वो ब्लास्ट चूंकि पेरिफेरल सर्कुलेशन में नहीं आते, इसलिए इसको हम ल्यूकीमिया नहीं कहते, इसको हम लिम्फोमा कहते हैं। और एक और प्रॉपर्टी इसकी ये है कि वो एक डिस्क्रीट मास बना देते हैं, एक ही जगह पे कॉन्फाइंड होते हैं, इधर उधर मूव नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम इसको लिम्फोमा कहते हैं। तो WHO ने इसको प्रिकर्सर बी सेल्स और प्रिकर्सर टी सेल लिम्फोमा या ल्यूकीमिया में डिवाइड किया है। ये प्रिकर्सर बी सेल्स और प्रिकर्सर टी सेल्स ये ऑन द बेसिस ऑफ CD मार्कर के बेस पे उन्होंने डिवाइड किया है कि प्रिकर्सर बी सेल्स के जो सेल्स हैं उनके सरफेस पे डिफरेंट CD मार्कर्स होते हैं, क्लस्टर डिफरेंशिएशन जिसको हम कहते हैं। और क्लस्टर डिफरेंशिएशंस आर बेसिकली द एंटीजन व्हिच इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ cells on the basis of which we can differentiate that either the cell will be B cells or T cells or the cell may be myeloid cells or lymphoid cells। तो ये on the basis of CD markers, और CD markers हम immune phenotyping या flow cytometry के बेस पे डिटेक्ट करते हैं कि either it is myeloid leukemia or it is lymphoid leukemia। लेकिन लिम्फाइड ल्यूकीमिया में either it is precursor B cell leukemia or precursor T cell leukemia। So these are based on the basis of CD marker which is present on the surface of lymphoblast, and we will discuss that which type of CD marker will be present on the surface of B cells and which markers will be present on the surface of T cells। Now B cells, precursor B cell lymphoblastic leukemia / lymphoma। So precursor B cell ALL comprise approximately 85% of all childhood leukemia। Means कि जितने भी ल्यूकीमिया हैं उसमें बी सेल जो है वो 85% होते हैं जो कि बच्चों में अकर होते हैं, जबकि अप्रोक्सीमेटली 10% ऑफ द लिम्फोब्लास्टिक लिम्फोमा के जो केसेस आते हैं बी सेल के टाइप के वो 10%, उसकी परसेंटेज 10% है। Similarly, precursor B cell lymphoblastic leukemia or lymphoma is a malignancy where B cell lineage lymphoblast predominant in the bone marrow। बोन मेरो में मोस्टली बी लिनेज के जो सेल्स होते हैं वो मौजूद होते हैं। Sometimes there is primary involvement of lymph nodes or extra nodal sites। एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया की एक और प्रॉपर्टी ये है कि इसमें लिम्फ नोड की इन्वॉल्व होती हैं जिसको हम कहते हैं लिम्फ एडिनोपैथी। तो जितने भी लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया हैं, चूंकि लिम्फोसाइट जो है वो मूव करते हैं लिम्फ नोड की तरफ भी, तो इसलिए लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, क्योंकि पेरिफेरल सर्कुलेशन में भी जो TLC हैं वो इंक्रीज होती हैं और ब्लास्ट की जो परसेंटेज है वो भी इंक्रीज होती है। इसीलिए चूंकि TLC रेज हैं, बोन मेरो में भी लिम्फोब्लास्ट ज्यादा होते हैं, तो इसलिए जो लिम्फ नोड्स हैं उसमें भी लिम्फोब्लास्ट की परसेंटेज ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से वो एनलार्ज होते हैं और उसको हम कहते हैं लिम्फ एडिनोपैथी। सो लिम्फ एडिनोपैथी इज एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ acute lymphoblastic leukemia। और according to WHO classification,
the percentage of blast will be more than 20%. जैसे हमने कहा कि हम कब इसको कहेंगे कि दिस इज अ लिम्फोमा. सो दिस इज बेसिकली अ डेफिनेशन ऑफ लिम्फोमा that when the leukemic process is limited to a mass lesion and less than 20% or fewer lymphoblasts are seen in the bone marrow, this is designated as a lymphoma. The blood and bone marrow consists mainly of lymphoblasts with L1 or L2 morphology, जो कि हमने इससे पहले previous डिस्कस किया. Now immune phenotyping, that which CD marker will be present on the surface of B cells. So these are CD markers which is present mostly on the surface of B cells, and we diagnose that either the cell is B lymphoblastic or T lymphoblastic. So this diagnosis is basically based on flow cytometry. So CD marker 10, CD marker 19, CD marker 20, CD marker 22, CD marker 24 and CD marker 79A. These are the markers of B cell lymphoblastic leukemia. अगर ये मार्कर्स मौजूद है किसी सेल के सरफेस पे तो हम इसको कहते हैं प्रिकर्सर B acute lymphoblastic leukemia. Now precursor T lymphoblastic leukemia or lymphoma, ये वो लिम्फोमा या ल्यूकीमिया है जिसके सरफेस पे टी सेल्स के मार्कर्स होते हैं. एक और प्रॉपर्टी, व्हेन देयर इज ए प्राइमरी इन्वॉल्वमेंट ऑफ लिम्फ नोड और एक्स्ट्रान्यूरल साइट, इट इज टर्म टी लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया. रिमेंबर, टी थाइमस से निकला है और टी लिम्फोसाइट वो लिम्फोसाइट्स होते हैं जिनकी मैच्योरेशन मोस्टली थाइमस में होती है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं टी लिम्फोसाइट. जबकि बी लिम्फोसाइट की मैच्योरेशन मोस्टली बोन मैरो में होती है, इसलिए हम इसको कहते हैं बी लिम्फोसाइट्स. सो अगर जो टी लिम्फोसाइट है इसमें ऑलमोस्ट ऑलवेज लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट होती है और लिम्फ नोड्स में टी लिम्फोसाइट की परसेंटेज बहुत ही ज्यादा हो जाती है. इसकी परसेंटेज अप्रोक्सीमेटली 15 to 20%. जितने भी ल्यूकीमियाज हैं चाइल्डहुड ल्यूकीमियाज, तो प्रिकर्सर टी लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया मोस्टली 15 to 20%, ये एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया में 15 to 20% ये होती हैं प्रिकर्सर टी लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया. और इसकी मॉर्फोलॉजी मोस्टली L2 टाइप मॉर्फोलॉजी होती हैं, जबकि L1 टाइप मॉर्फोलॉजी ज्यादातर नहीं देखी गई. परसेंटेज रिसर्च से ये साबित हुआ है कि जितने भी प्रिकर्सर टी लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया है इसकी मॉर्फोलॉजी मोस्टली L2 की तरह होती है. मींस कि इसमें टू पॉपुलेशन ऑफ सेल्स होते हैं, वन स्मॉल पॉपुलेशन ऑफ ब्लास्ट सेल्स एंड द अदर इज लार्ज पॉपुलेशन ऑफ ब्लास्ट सेल्स. सो मीन हेट्रोजीनियस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ब्लास्ट विल बी प्रेजेंट इन प्रिकर्सर टी लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया और लिम्फोमा. Now these are the markers of TALL. So कौन कौन से मार्कर्स TALL के सरफेस में मौजूद होते हैं? तो CD marker 3, CD marker 7, CD marker 1, CD marker 2 and CD marker 5. These are the markers of TALL. इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया कि these are the most important. अगर इनमें से 1, 2, 3 या सारे अगर एक सेल के सरफेस पे ये CD मार्कर्स पाए जाए तो ये टी लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया हम कंसिडर करते हैं. दीज आर द मार्कर्स. ये AML के मार्कर्स, ये प्रिकर्सर B ALL के मार्कर्स और ये TALL के मार्कर्स हैं. तो कौन कौन से मार्कर्स? माइलॉइड सेल्स के मार्कर्स जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि CD मार्कर 13, 33 एंड 117 मींस 117. ये मार्कर्स मोस्टली किसके मार्कर्स हैं? AML के मार्कर्स हैं. M6 के मार्कर ग्लाइकोफोरन A हमने कंसिडर किया था कि ये हैं, जबकि CD मार्कर 41 ये M7 के सरफेस पे पाए जाते हैं और मालिक पेरोक्सिडेज अगर पॉजिटिव है तो ये M0 में पाए जाता है. जबकि बी लिनेज में अगर हम देखें तो 19, 22, 79A और CD मार्कर 10 ये बी प्रिकर्सर जो टी लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया है उसमें पाए जाते हैं.
जबकि साइटोप्लाज्मिक इम्यूनोग्लोबुलिन और सरफेस इम्यूनोग्लोबुलिन ये बी सेल के सरफेस पे पाए जाते हैं और ये पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, जबकि टी से अगर हम टी में देखें तो ये मार्कर्स इसमें नेगेटिव है। जबकि टी लिनेज में अगर हम देखें तो CD मार्कर 3, CD मार्कर 7, CD मार्कर 2 और TTD ये पॉजिटिव हैं बोथ प्रिकर्सर बी और टी में, जबकि AML में TTD नेगेटिव है। नाउ दिस इज अ लिम्फोब्लास्ट। अगर हम देखें कि ये लिम्फोब्लास्ट में ये एक सेल है जिसमें ये तीनों की लिम्फोब्लास्ट हैं। इस लिम्फोब्लास्ट को अगर हम देखें तो इसका साइज कम है, इसका साइज ज्यादा है और इसका साइज भी ज्यादा है। तो इट मीन्स कि इसमें हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन ऑफ ब्लास्ट सेल पाई जाती है और हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन ऑफ ब्लास्ट सेल L2 में पाई जाती है। एक और चीज लिम्फोब्लास्ट में, जैसे हमने कहा कि इसमें न्यूक्लियोलस, ये न्यूक्लियोलस पाया जाता है, इसमें ये भी न्यूक्लियोलस, साइटोप्लाज्म स्केम्टी साइटोप्लाज्म है। इसमें अगर हम देखें तो इसमें साइटोप्लाज्म बहुत ही हल्का नजर आ रहा है और वो यहाँ पर नजर आ रहा है हमें। तो इनसी रेशो इस सेल की ज्यादा है बनिस्बत इस सेल की, क्योंकि इसमें भी साइटोप्लाज्म एज कंपेयर टू दिस ज्यादा है। तो दिस इज हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन ऑफ ब्लास्ट सेल जो कि L2 में पाया जाता है। अच्छा, पेरिफेरल सर्कुलेशन में TLC या कंप्लीट ब्लड काउंट अगर हम देखें तो TLC बहुत ही ज्यादा होती है, मोर देन 50,000। तो 1 लाख भी हो सकती है, 2 लाख भी हो सकती हैं। फिर पेरिफेरल सर्कुलेशन में मोस्टली ब्लास्ट सेल पाए जाते हैं। 90%, 80%, 70% ये पेरिफेरल सर्कुलेशन में ब्लास्ट पाए जाते हैं, जबकि आरबीसी की मॉर्फोलॉजी नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक मॉर्फोलॉजी होती है और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया इसलिए इन पेशेंट्स में होता है क्योंकि ब्लास्ट सेल की परसेंटेज बोन मैरो में ज्यादा होती है, तो ये ब्लास्ट सेल इन थ्रोम्बोसाइट्स को यानी मेगाकैरियोसाइट को सप्रेस कर देते हैं और मेगाकैरियोसाइट प्लेटलेट प्रोड्यूस नहीं कर पाते। इसलिए पेरिफेरल सर्कुलेशन में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होती है और जो कॉम्प्लिकेशन थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के हैं वो सारे के सारे इन पेशेंट्स में होती हैं, मींस की ब्लीडिंग इन पेशेंट्स में ज्यादा होती है। पिन बोन मैरो चेंजेस इन एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। तो अगर हम बोन मैरो एस्पायरेशन करें तो बोन मैरो एस्पायरेशन में प्रीडोमिनेंट जो सेल्स हमें नजर आते हैं वो ब्लास्ट सेल नजर आते हैं। अकॉर्डिंग टू FAB क्लासिफिकेशन अगेन मोर देन 30%, while according to WHO classification more than 20% blast if present in the bone marrow, so we will consider that leukemia as acute leukemia। और इसमें जो ब्लास्ट होंगे वो मोस्टली वो लिम्फोब्लास्ट होते हैं, इसलिए हम इसको टाइप करते हैं एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। एरिथ्राइड सेल्स ब्लास्ट चूंकि ज्यादा होते हैं इसलिए ये ब्लास्ट एरिथ्राइड सेल्स को भी रिड्यूस कर देते हैं, जिसकी वजह से अनीमिया होता है और डिसएरिथ्रोपोसिस मींस के इसकी मॉर्फोलॉजी भी डिस्टर्ब होती है एरिथ्राइड सेल्स की और मेगाकैरियोसाइट मार्कली रिड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से पेरिफेरल सर्कुलेशन में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है। तो पेरिफेरल सर्कुलेशन में रेड ब्लड सेल्स की कंसंट्रेशन कम होगी, जिसकी वजह से इन पेशेंट्स को अनीमिया होगा। क्योंकि अगर रेड सेल्स कम है तो इट मीन्स कि हेमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन भी इन पेशेंट्स में कम होगी। इसी तरह मेगाकैरियोसाइट तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया पेरिफेरल सर्कुलेशन में होगा। L1 is the most common form found in children and it has the best prognosis। तो L1 जो इसकी प्रोग्नोसिस मीन थेरेप्यूटिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम प्रोग्नोसिस कहते हैं। प्रोग्नोसिस का मतलब यह है कि अगर इन पेशेंट को कीमोथेरेपी दी जाए तो ये बहुत इजीली कीमोथेरेपी से रिस्पॉन्स करते हैं। तो L1 में देखा गया है रिसर्च के बेस पे कि जब इन पेशेंट्स को कीमोथेरेपी दी जाती है तो ये इनके रिस्पॉन्स बहुत ही ज्यादा होता है। और प्रोग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ फैक्टर्स हैं जो कि प्रोग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पेशेंट्स में प्रोग्नोसिस गुड होती है, कुछ पेशेंट्स में प्रोग्नोसिस बैड होती है। तो फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है उसका TLC काउंट कम है तो उसकी प्रोग्नोसिस बेस्ट होगी।
अगर कुछ पेशेंट में TLC काउंट ज्यादा है तो उसकी प्रोग्नोसिस बेड होती है। ये L1 है। अगर हम इसकी मॉर्फोलॉजी देखें तो सारे के सारे ये हमें ब्लास्ट सेल नजर आ रहे हैं। ये ब्लास्ट सेल, अगर इस ब्लास्ट को हम देखें, इसको हम देखें, इसको हम देखें और इसको देखें, तो ये सारे के सारे ब्लास्ट सेल स्मॉल ब्लास्ट हैं। इनसी रेशो इन ब्लास्ट की ज्यादा है क्योंकि साइटोप्लाज्म कम है जबकि न्यूक्लियस ज्यादा है। अगर इन मेजॉरिटी ऑफ ब्लास्ट को हम देखें तो इसमें न्यूक्लियस हमें नजर नहीं आता, जो कि L1 की प्रॉपर्टी है कि इसमें न्यूक्लियस नजर नहीं आता। होमोजीनियस पॉपुलेशन ऑफ ब्लास्ट होते हैं। इनसी रेशो इन पेशेंट्स की ज्यादा होती है ब्लास्ट की। साइटोप्लाज्म बहुत ही कम होता है। न्यूक्लियोलस कुछ इसमें नजर आएंगे लेकिन मोस्टली इसमें न्यूक्लियोलस नजर नहीं आते हैं। तो दिस इज बेसिकली द मॉर्फोलॉजी ऑफ L1। L2 अगर हम थोड़ा सा उस पे प्रीवियसली चले जाएं तो हमने कहा कि साइटोप्लाज्म में क्लिफ्टिंग मौजूद होती है न्यूक्लियस में। तो ये न्यूक्लियस है, इसमें ये क्लिफ्ट नजर आ रहे हैं, मीन्स कि न्यूक्लियस इंटेंडेशन है और इरेगुलर शेप में सेल्स नजर आते हैं ब्लास्ट सेल, और इसमें न्यूक्लियोलस प्रोमिनेंट नजर आता है। साइटोप्लाज्म इन सेल्स का ज्यादा होता है बनिस्बत L1 के। तो दिस इज बेसिकली L1 L2 टाइप ऑफ ब्लास्ट। ये LT टाइप ऑफ ब्लास्ट है। जैसे हमने कहा अगर हम इसको देखें तो ये सेल्स लार्ज सेल्स है। RBC से अगर हम कंपेयर करें तो ये सेल्स बड़े सेल्स हैं। न्यूक्लियोलस इसमें प्रोमिनेंट नजर आ रहे हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर के साइटोप्लाज्म में वेक्यूलेशन होती है। और हमने वेक्यूलेशन इसको डिस्क्राइब किया था कि इससे चूंकि अमीनोग्लोबुलिन्स निकल आते हैं इसलिए साइटोप्लाज्म में वेक्यूल्स रह जाते हैं। So this is a very important and prominent feature that these type of blasts will have vacuolation in cytoplasm and will have basophilic in color and nucleus will be prominent. ये अगेन L3 टाइप ऑफ ब्लास्ट हैं जो कि लार्जर इन साइज हैं और क्लियर कट वेक्यूलेशन साइटोप्लाज्म में नजर आ रही हैं। ये अगेन L1 L2 और ये L3 जिसमें वेक्यूलेशन है। L2 इरेगुलर, रेगुलर और अगेन इरेगुलर इन शेप। नाउ साइटोकेमिकल स्टेन्स कि कौन कौन से स्टेन्स एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया और एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया में पॉजिटिव होते हैं। तो इम्प्यू जिसको हम कहते हैं माइलोपेरोक्सीडेज स्टेन, ये LL में नेगेटिव होते हैं जबकि AML में ये पॉजिटिव है। सूडान ब्लैक बी ये LL में नेगेटिव है जबकि AML में पॉजिटिव है। पर आयोडिक एसिड शिफ्ट ये LL में पॉजिटिव है, AML में ये नेगेटिव है। स्ट्रेस्टेन AML में नेगेटिव, LL में नेगेटिव, AML में पॉजिटिव। और एसिड फास्फेटेस्टेन ये LL में पॉजिटिव जबकि AML में ये नेगेटिव है। So on the basis of these cytochemical stain we can differentiate that either this is acute lymphoblastic leukemia or acute myeloid leukemia. Biochemical test, although it is not much importance, but still we consider it that serum uric acid will be raised, serum LDH it will also be raised, hypokalemia will be present, hyperuricemia will be present, and potassium level will be increased in the serum. Now most important thing is one important stain, and that is TTD or terminal deoxynucleotide transferase enzymes, which is mostly positive in LL cases while negative in AML. But in some cases of AML this TTD is also positive. Now imaging studies like X-ray, CT scan और MRI, इसी तरह अल्ट्रासाउंड
इसकी भी although कि इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, but still we consider it. Some physicians consider it, but it is not much more important in cases. The most important thing for the diagnosis of acute lymphoblastic or acute myeloid leukemia is peripheral smear, bone marrow aspiration, immune phenotyping, RCD markers और स्टेन्स जैसे MPO है, सूडान ब्लैक बी है, इसी तरह MPS है, नॉन स्पेसिफिक स्टेरेसिस हैं, तो ये इम्पोर्टेंस रखती हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं। सीसिफ भी बस कंडीशन में देखते हैं कि जब न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आती हैं पेशेंट्स में, तो उसके लिए फिर हम सीसिफ परफॉर्म करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें भी इन्वॉल्वमेंट है। तो मोस्टली सीसिफ ये एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया में देखा जाता है। बच्चों में सीसिफ मोस्टली परफॉर्म करते हैं, बड़ों में जब न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आती हैं तो तब जाके सीसिफ परफॉर्म करते हैं। और हमने एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया में पढ़ा था कि जो M4 और M5 है, इसमें न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं, क्योंकि जो मोनोसाइट है दे आर वेरी स्टिकी एंड दे हैव द मोर पेनिट्रेटिंग पावर एज कम्पेयर टू अदर सेल्स, तो वो मोस्टली पेनिट्रेट कर जाते हैं। तो सीसिफ परफॉर्म करते हैं एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया में, मोस्टली बच्चों में ये परफॉर्म किया जाता है। दिस इज कैरोटाइपिंग। Thank you so much.